As you know that previously we have learnt about right from aphorism number 1 to 5, and in aphorism number 1 to 5 I have already explained to you that regarding the mission of the physician, that the mission of physician is nothing else but to restore sick to health, as it is termed. And what So, as I told you that previously we were discussing over the aphorism number 1, in which I had explained to you regarding the mission of the physician, in which I told you that mission of the physician is nothing else to restore sick to health. He should not indulge into so many explanations that how disease has happened, what was in the interior, because the disease causation, the exact cause of the disease, since the disease is a dynamic in nature, so it cannot be seen by eye or microscope or anything else. So for this, Dr. Hahnemann has explained that the physicians who were involved in treating the cases and searching for the cause of the disease, they have wasted their talent and time and nothing else, and they have constituted an institutional training regarding that what is to be explained and how the words in the unintelligible wrapped words they have explained. All these things have been given by Dr. Hahnemann. So the mission of the physician is nothing else but to restore the sick to health, and how it should be cured, the quality of the cure, it should be like highest ideal of cure, that is rapid, gentle, and permanent in a most harmless way, and it should be based on the easily comprehensible principle. For this, if a physician wish to do like that, that if he want to complete his mission, then if he want to uh, cure the patient as highest ideal of cure, then he need to have some requisite qualification like the knowledge of medicine, knowledge of disease, and knowledge of application of medicinal knowledge to the disease knowledge, that is the preparation of medicine, dose and repetition of dose, etc., etc. He is also, the physician is also a likewise preserver of the health, and he should preserve the health who the physicians who is very much family physicians definitely do require to uh, counsel or give the counseling to the patients regarding what are the diseases which are prevailing in the community and what should be avoided. Likewise, in diet also, that what should be added in diet so that your health should be protected, and what are the things which can make you sick that should be avoided. Likewise, that. So he has already explained such thing right from FR 1, 2, 3, 4, and in the 5 he explains regarding that the diseases of acute diseases are due to exciting cause, whereas the chronic diseases are due to some fundamental mechanism, that is psoriasis and psychosis. So these things have already been explained to you in my previous classes. Now today we will focus that how a physician should be, how should he observe the case, likewise that. So we should go further from the aphorism number 6 and onward. So in 6, my dear friends, it has been explained that the unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculation, which can perceive no confirmation from the experience, be his power of penetration ever so great, take note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and the mind, that is morbid phenomena, accident, symptom, which can be perceived externally by means of the senses, that is to say
he notices only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptual signs represent the disease in its whole extent, that is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. So, in this, what Dr. Henneman wanted to say, that how should be a physician? A physician should be like unprejudiced observer. He must not be prejudiced. What is prejudice? Prejudice means that a physicians जो कि पहले से ही दिमाग में नोशन बना लेते हैं कि इस पेशेंट में यही प्रॉब्लम हुआ होगा, यही डिजीज हुई होगी, कुछ ऐसी बातें वो कर लेते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर हेनेमैन ने बहुत अच्छी तरह से ये बातें कही कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर कौन होगा, उसको सब कुछ मालूम है कि ये जो थ्योरेटिकली स्पेकुलेशन है वो सब बेकार है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, which can receive no confirmation from the experience, और एक्सपीरियंस बताता है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। be his power of penetration ever so great, और अगर उसका पावर यानी कि उसका इंटेलिजेंसी, उसका नॉलेज इतना भी रहे कि पेनिट्रेट कर सके, तब भी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उन बातों से उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सो ही शुड बी अनप्रेजुडिस्ड। अनप्रेजुडिस्ड मींस he should not make the opinion before examining the patient। जब तक पेशेंट को वो एग्जामिन नहीं कर ले, उसके लिए कोई ओपिनियन नहीं बनाए। इसीलिए डॉक्टर हिनेमैन ने कहा, टेक द फिजिशियन, ट्रू फिजिशियंस क्या करेगा, टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड। उसको क्या जानना है, जो चेंज हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है, बॉडी एंड माइंड में। बॉडी और माइंड में क्या चेंज हुआ होगा, वो जानने के लिए उसको पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा, साइन सिम्टम लेना पड़ेगा, और उसको मॉर्बिड फेनोमेना के बारे में जानना होगा कि ये डिजीज कहाँ से इनिशिएट हुआ, वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा समय था, क्या उस समय सर्कमस्टांसेस थे जब ये डिजीज का इंसेप्शन हुआ, उस समय क्या हुआ, और वो मॉर्बिड फेनोमेना, वो डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस किया स्टेप बाय स्टेप। दैट इज what we understand from the past history and the past history of the patient, जो कि पास और हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग लेते हैं। और जो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि रोड का एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट्स यानी कि लाइफ में जो कुछ घटनाएं घटी, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी को मेंटल ट्रॉमा हुआ हो, किसी को कोई सेटबैक लगा हो, ये सारी चीजों को नोट करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ साथ जो ट्रू थिंग है, दैट इज नथिंग एल्स बट द सिम्टम, कि सिम्टम्स भी हमें नोट करना है। तो इन बातों को ध्यान रखिए कि हमें ऐसा ही करना है, और तभी हम एक पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय means of the senses, that is to say he notices only the deviation from the former health state of the now diseased individual। क्या कहने का मतलब हुआ कि एक जो फिजिशियंस है वो क्या करता है कि डिजीज जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें उसको केवल डेविएशन देखना है। कहाँ से देखना है, विथ सेंसेस। सेंसेस मीन्स साउंड सेंसेस से देखना है। और साउंड सेंसेस क्या होता है, साउंड सेंसेस आप समझते होंगे, साउंड सेंसेस क्या होता है, साउंड सेंसेस समझ में आता है। साउंड सेंसेस का मतलब होता है हिज आईज, हिज ईयर्स, हिज नोज, his taste and touch. These are the 5 things. Now, what I mean to say here, one point, that it should be sound. Why I am telling sound? That if a person is not able to see properly, he must use spectacles, कि उसको आंखों में चश्मा लगा के देखना चाहिए। चश्मा से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिख रहा है तो उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहिए। सो ऑल थिंग्स आर ओपन हियर, बट ही शुड यूज द साउंड सेंसेस। अगर वो चीजों को सुन सकता है तो ठीक है, नहीं सुन सकता है तो स्टेथोस्कोप लगा सकता है। सिमिलरली स्मेल और
उसका किसी चीज का टेस्ट कैसा है उसके बारे में जानना, और साथ ही साथ उसको टच करके देखना, पल्पेट करना और समझना कि डिजीज कैसा है उसके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। So, which can perceive externally by means of senses, that is to say, he notices only the deviation from the former healthy state to now the diseased individual, which are felt by the patient himself. और ये कहाँ कहाँ से आएगा? There are 3 points from where we can gather the changes which the physicians want to note. That is from the patient himself, जो उसका personal feeling है, और remarked by those जो अटेंडेंट उनके साथ आए हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानना, और आप खुद एज ए फिजिशियन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बारे में जानना। तो ये 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू कंस्टिट्यूट अ मॉर्बिड फेनोमेना, to know the morbid phenomena of disease, one has to understand and know that is the from the patient himself, remarked by those around him, that is friends and relatives, and the physician himself, whatever he observed. And what the physicians observed? Physician observed the way he is sitting, the way he is talking, how his response is. Likewise that. So a physician is very much unprejudiced observer. He does not make बिफोर हैंड द केस। जैसे एक केस आया और उसने पेट में दर्द बोला और अभी लोकेशन देखा भी नहीं, कुछ समझा ही नहीं, बस समझ गया कि हाँ आपको क्या है, आपको हो सकता है जीबी स्टोन। और ये फटाफट अपना आप इमेजिन करें उन डॉक्टर के प्रति थोड़ा सा, जो कि बहुत ज्यादा प्रिटेंड करते हैं कि दे आर वेरी मच सो मच बिजी डॉक्टर, दे आर वेरी टैलेंटेड डॉक्टर, एंड हाउ डू दे बिहेव। जस्ट हैव ए इनसाइट, अपने इनसाइट से समझने की कोशिश करिए। एक एलोपैथिक फिजिशियंस जब आपके उसके पास कोई पेशेंट जाता है, पेशेंट खड़ा रहता है, फिजिशियंस उसकी तरफ एक बार देखने के बाद दोबारा देखता नहीं है। पेशेंट 3 या 4 सिम्टम बोलता है, उसके बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में रहता है और तुरंत देता है कि ये एग्जामिन कराइए, दवा दीजिए और जाके 1 महीने बाद। So this is the thing कि they are very much uh, think themselves that they are so much educated that don't they know every phenomena of the disease. उसको उससे लेना ही देना नहीं कि where the patient is feeling something burning inside the abdomen, he मतलब अगर उसको जलन वाला भी दर्द है तो भी उसको नहीं लेना देना। हो सकता है बहुत जलन अगर 1-2 बार बोल दिया तो इंडोस्कोपी खींच देंगे, that's all. So likewise that, so they are not going to listen the patients properly. They don't want to understand all the phenomena of the disease properly, but they focus only the chief symptom, and accordingly they plan and institute the treatment. Likewise that. So there are a few footnotes also, which is very much important from every point of view. अगर आप ये footnote नहीं समझेंगे तो आपको सारी बातें नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पे एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या होता है इसको समझना होगा। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज समझने के लिए जो अभी हमने आपको बताया कि एक फिजिशियन जो देखता है, जो समझता है, जो नोटिस करता है सारी चीज़ों को, जैसे कि जो पेशेंट बताता है उसको केयरफुली नोट करता है, जो अटेंडेंट बताता है उसको केयरफुली नोट करता है, और उसको खुद भी ऑब्जर्व करता है और अपना ऑब्जर्वेशन देता है। फिजिशियंस का ये भी मतलब होता है कि कहीं वो सिम्टम से डिसीव्ड तो नहीं हो रहा। डिसीव्ड मतलब कि धोखा तो नहीं दे रहा कि हो कुछ रहा है वो बता कुछ रहा है, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट। आप लोग जानते हैं, आप लोग यंग लोग हैं, आप लोग को मालूम है there are so many disappointments which cannot be explained in front of parents और something like that। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हो सकता है फ्रेंड नहीं बता सकते, और कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लोज्ड फ्रेंड ही बता सकता है फिजिशियंस को, अटेंड पेशेंट खुद नहीं बता सकता है। उसी तरह से देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो रिलेटेड टू, जैसे कि ड्यूरिंग स्लीप वो क्या पोजीशन में सोता है पेशेंट नहीं बता सकता। ड्यूरिंग स्लीप वो मटरिंग करता है, बड़बड़ाता है, नहीं बड़बड़ाता है, वो नहीं बता सकता। Likewise that there are so many things which are to be known in every case। हमें सारी चीजों के बारे में जानना पड़ता है so that कि हम क्या कर सकें,
कि डिजीज का जहां से इंसेप्शन हुआ, जहां से पेशेंट का फीलिंग एबनॉर्मल का फीलिंग आया, वो और आज जो पेशेंट सामने बैठा है वो, वहां से लेके वहां से क्या क्या ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें आई, उस रोड को सारा को मार्क करना है और सभी चीजों को नोट करना है और जानना है। बट इट माइंड इट शुड बी प्योर एंड जेन्यून, इट शुड नॉट बी concocted, ये अपने से बनाया हुआ नहीं होना चाहिए. So let us see the footnote that what Feynman wanted to further convey. So according to him, uh, I know not therefore how it was possible for physicians at the sick bed to allow themselves to suppose that without most carefully attending to the symptom and being guided by them in the treatment, they ought to seek and could discover only in the hidden and unknown interior that there was to be cured in the disease. ये कैसे हो सकता है कि एक फिजिशियंस आता है बेड साइड पे और वो पहले से प्लान कर लेता है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और इंटीरियर डिजीज के बारे में सब कुछ जानता है, एंड एरोगेंटली एंड ludicrously pretending that they could, without paying much attention to the symptoms, discover the alteration that has occurred in the invisible interior. और कैसे करते हैं? एरोगेंटली, बड़ा एरोगेंट रहते हैं और बहुत ही मतलब ये रिडिकुलस है कि वो अपना इस तरह की चीजों का ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत कम अटेंशन, बेड साइड पे जाते हैं पेशेंट को, ओ समझ गया मैं ये क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, ऐसा करके वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं और वो सोचते हैं कि सारी डिजीज के बारे में वो समझ गए। क्यों? क्योंकि उनको सभी कुछ मालूम है। डिस्कवर द अल्टरेशन दैट हैड अकर्ड इन द इनविजिबल इंटीरियर, और वो समझते हैं कि इनविजिबल इंटीरियर में जो डायनेमिक डिजीज है उसके बारे में सब कुछ समझ गए, एंड सेट इट टू द राइट विथ अननोन मेडिसिन। और कैसे करते हैं? कुछ जो अननोन मेडिसिन रहते हैं जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी भी नहीं होती है कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे क्या कर सकते हैं, उन मेडिसिन को दे देते हैं। एंड दैट सच ए प्रोसीजर एज दिस कुड अलोन बी कॉल्ड द रेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन कि और इसी तरह का जो डॉक्टर बिहेव करते हैं, जो डॉक्टर प्रॉपर नहीं समझते हैं और बताते हैं कि हाँ हमने समझ लिया और एक मेडिसिन कुछ लिख देते हैं जिसका कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ये जो भी आप आज एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सब सिक पर्सन पर यूटिलाइज करने के बाद जो उनका एडवर्स इफेक्ट हुआ वो नोटेड है और वो आज प्रिंटेड है आपके एलोपैथिक टेबलेट पे या सिरप पे सभी चीज। बट व्हाट कैन इट डज, व्हाट कैन दे दोज मेडिसिन डू इन द इंडिविजुअल व्हेन दे वर हेल्दी इफ दे वर ट्राइड, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं। सो दे गिव ए 3 or 4 medicines together and say that this is the plan and that is to be said। ये बहुत ही आयरोनिकली है कि इसी को वो रेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। एक और फुटनोट है जो कि फिर एक चर्चा करते हैं उस फुटनोट पर। So is not then that which is cognizable by the senses, क्या ऐसा नहीं है कि जो हमारे नॉलेज, हमारे जो कॉग्निजेबल जो सेंसेस है, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं टच से, डिजीज थ्रू द फिनोमेना इट डिस्प्लेस, और जैसा ये डिस्प्ले करता है डिजीज, द डिजीज इटसेल्फ in the eyes of the physician, since he never can see the spiritual being that produces the disease, the vital force, but nor is it necessary that he should see it। उसको देखने की भी जरूरत नहीं है फिजिशियन को, बट क्या देखने की जरूरत है? बट ओनली दैट ही शुड ascertain its morbid action। उसका क्या morbid action है? morbid action in order that he may thereby enable to cure the disease। ये बेसिक चीजें हैं जिसको कि एक फिजिशियंस को करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हिडन है, वो नहीं जानकारी रख सकते हैं। तो what else will the old school search for in the hidden interior of the organism as the prima causa morbid। और अगर साइन सिम्टम ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में कैसी होती हैं, ट्रू होती हैं। साइन सिम्टम कभी झूठ नहीं बोलते। क्या झूठ बोलते हैं मालूम है? आप लोगों को आश्चर्य होगा और आप लोग को आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए।
कि ये फिनोमेना और ये चीजें एक बार नहीं कई बार घटित हो चुकी है। क्या घटित हो चुकी है कि कितनी ही ऐसी बारें हैं, चाहे आप मूवी में देखें चाहे रियल लाइफ में भी देखें, कि किसी का पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का सारा जो जांच का रिपोर्ट है वही सारा गलत हो गया, और गलत हो गया, और उसी जांच के आधार पर ट्रीटमेंट हो गया। ऐसा सो मेनी केस है, सो मेनी केस, सेवरल केसेस, कि जहां पर ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस की दवा चल गई और दवा इतना हार्म किया कि उसका लिवर डैमेज हो गया। इट इज नॉट ए सिंगल, सेवरल इंस्टांसेस, बहुत सारी घटनाएं ऐसी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो साइन सिम्टम लेके पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का आया, डॉक्टर ने विम्सिकल अप्रोच लगाया और कहा कि मुझे जितना नॉलेज है उतना किसी को नहीं, और उसने वो ट्रीटमेंट प्लान किया, और उस ट्रीटमेंट के दौरान उसने गलत किया, क्योंकि हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, वो कुछ इंसेप्शन था जिसकी ट्रीटमेंट अभी चलनी नहीं चाहिए। और ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन के बारे में आपको मालूम है, शुरू शुरू में स्ट्रेप्टोमाइसिन चलता था, जो कि आदमी का साइड इफेक्ट में कान से बहरा भी कर देता था। तो देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच हैपेंड एज अ साइड इफेक्ट ऑफ सच मेडिसिन। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। हमें ट्रू गाइड कौन करता है? जब एक डिजीज इंटीरियरली हो गया, एक डायनेमिक डिजीज हो गया, डायनेमिक डिजीज होने के बाद वो डायनेमिक मॉर्बिड फिनोमेना शुरू हुआ, उस फिनोमेना के तहत साइन सिम्टम आने शुरू हुए। ये साइन सिम्टम उस डायनेमिक फिनोमेना और वो जो डिजीज हुआ, इसी के बारे में वो सामने रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कौन सा डिजीज हूँ। तो इसका पोर्ट्रेट बना करके जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, दैट विल बी ट्रू, बट नॉट ऑन द पैथोलॉजिकल ग्राउंड, कि जो रिपोर्ट आ गया अगर हम उसी पे करें। क्योंकि रिपोर्ट्स मे लाई समटाइम्स, हम लोग कहते हैं ना रिपोर्ट पे ही बेस्ड होता है, बट इट हैपेंस सेवरल टाइम्स कि रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं और ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। इसलिए द ट्रू गाइड ऑफ ए फिजिशियन is nothing but the sign and symptom of the patient, but for that the physician should be unprejudiced, उसको एकदम अनप्रिजुडिस होना चाहिए, अपने से कोई फेनोमेना, अपने से कोई थ्योरी नहीं बना लेनी चाहिए कि जरूर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा इसलिए डिजीज हुआ, नेवर। तो ये बहुत ही अच्छा एफोरिज्म है, सिक्स एफोरिज्म, जो कि अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर के बारे में बताता है और आपको जानकारी देता है कि एक अच्छा फिजिशियन, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2018 बैच के जितने स्टूडेंट हैं हमारे सभी बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं, और वो लोग जरूर इन बातों पे ध्यान रखेंगे, और तब ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट आया और पेट में दर्द हुआ और बेलाडोना रसक देना शुरू कर दिए, फीवर हुआ आर्सेनिकम एल्बम देना शुरू कर दिए। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आप प्रॉपर जानकारी लेंगे। इवन एक केस ऑफ फीवर में कि उसकी प्यास कैसी है, उसको ठंड तो नहीं लग रही है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, हेड में कैसा है, बॉडी में कैसा है, पैर में कैसा है, हो सकता है अगर आपको ये पता चले कि अपर हेड वार्म है और पैर ठंडा है, तो हो सकता है ये आर्निका मोंटाना का पेशेंट हो। तब आपका आर्सेनिक, बेलाडोना, रस्टक्सिपेटोरियम, परफोलेटम, जेंसीनियम सब धरा का धरा रह जाएगा। और आप अगर उधर से ट्राई करते रहेंगे, सूनर और लेटर बस दवा दे रहे, बट द पेशेंट विल नॉट बी क्योर। सो माइंड इट दैट द फिजिशियन शुड नॉट मेक अ नोशन prior to the examining the patient thoroughly। अपने से नहीं बनाना चाहिए कि इसको ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, उसके लिए दवा देना चाहिए। प्रॉपर जानकारी रखना चाहिए। एक और बात इसी में हम करेंगे, दैट एक फुटनोट का ही पार्ट है, अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर का ही। Which they reject as an object of cure and contemptuously despise the sensible and manifest representation of the disease, the symptoms that so plainly address themselves to us. What else they wish to cure in the disease but these? सही बात, सोचने की बात है। जब एक डिजीज हो रहा है और डिजीज फेनोमेना से हमें सारा साइन सिम्टम मिल रहा है, तो उसको नहीं ट्रीट करके हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट है? अगर हमने साइन सिम्टम हटा दिया, साइन सिम्टम रिमूव कर दिया, देन व्हाट एल्स रिमेन्स इनसाइड? नथिंग एल्स बट द क्यूर्ड पेशेंट, द हेल्दी पेशेंट। ये एक ऐसी चीजें है
जिसके बारे में आपको समझना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अभी हमने कहा राइट फ्रॉम द एपिसोड नंबर 1 to 5 दैट कैसा पेशेंट को होना चाहिए, कैसा कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस ट्रीटमेंट को करने के लिए कैसा नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के बाद डिजीज में क्या क्या जानना चाहिए कि क्या एक्साइटिंग काउज से है, क्या मेंटेनिंग काउज से है, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी बताया कि ट्रू गाइड जो है वो साइन एंड सिम्टम ही है, वही एक पोर्ट्रेट बनाता है, और उस पोर्ट्रेट को अगर हम पहचान लेते हैं और आपके मेडिसिन में कैपेसिटी है तो उस पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को खत्म कर सके, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपका जो पेशेंट का है वो सारा डिजीज का साइन सिम्टम खत्म हो गया, देन इट मीन्स दैट ही इज क्योर्ड। हम 8th एफोरिज्म में इसका रिलेशन से बात करेंगे और 7th एफोरिज्म के रिलेशन में भी बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि इसका एक और फुटनोट में कहाँ तक है। तो वन मोर फुटनोट दैट द फिजिशियंस whose researches are directed towards the hidden relation in interior of the organism made earlier, जो कि अभी हमने बताया कि उस चीज को रिसर्च करने वाले जो कि हिडन रिलेशन को जानना चाहते हैं थ्रू द सो मेनी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि अक्सर डेली, इसमें तो हैनमन ने डेली एरर की बात कर दी, बट द होम्योपैथिस्ट हु ग्रास्प विद द रिक्विजिट एंड केयरफुल द होल ग्रुप ऑफ सिम्टम, सारे सिम्टम्स को जान लेते हैं, possesses a sure guide, and it he and if he success in removing the whole group of symptoms, he has likewise most assuredly destroyed the internal hidden cause of the disease. बहुत बड़ी बात कि अगर एक फिजिशियन अगर साइन सिम्टम को नोट कर लिया और साइन सिम्टम्स के अनुसार से अगर उसने दवा दे दी और वो साइन सिम्टम्स को पूरा रिमूव कर दिया, तो अंदर बॉडी के इनसाइड में ऐसा कुछ भी हिडन नहीं रहेगा जिसको कि हम डिजीज कह सकते हैं। However, in the 6th edition, it was given by Dr. Henneman. Later on, this was removed in the 6th edition. In 5th edition, it was there. ये नोट में लिखा हुआ फुट नोट में, दिस सब फुट नोट इज इंटायरली ओमिटेड इन द 6th edition. इसके बाद अभी मुझे आप लोगों को 7th और 8th भी पढ़ाना था, बट time has already exceeded, so now I will discuss over this especially aphorism number 6, which is very much important for every physician to understand. So kindly unmute yourself, और वो अब हम लोग बात करेंगे किसी चीज को अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताएं और समझाएं, ठीक है? तो आप लोग अनम्यूट करें। हमारी आवाज आ रही है? हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, पहले जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। हाँ, क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर पे? कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई हो? मेरी आवाज आ रही है? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो आदित्य, प्रखर आवाज आ रही है आपकी? आप अनम्यूट करें। मेहताब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आ रही है? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस सर। हेलो। हाँ, हाँ पूछिए, नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। सर आशीष कुमार गुप्ता, रोल नंबर 84। हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। सर आशीष, रोल नंबर 84। ठीक है आशीष। सर जैसे अगर कोई मेंटली सिक हो, कोई पेशेंट ऐसा हो जो मेंटली सिक हो या एक्सप्लेन न कर पा रहा हो, हाँ, तो उस कंडीशन में फिजिशियन कैसे उसको डिफाइन करेगा, फाइंड करेगा
एकदम कि बहुत इसके अंदर बहुत क्या अच्छा, डिजीज है और कैसे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने आशीष जी। और आपको बता दें कि मोस्ट ऑफ द सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो होते हैं वो कभी अपने को बीमार नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द सिजोफ्रेनिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते। रादर वो क्या कहते हैं कि मैं नहीं, जो अटेंडेंट जो पेरेंट्स है वो बीमार है, उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, मुझे नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ही जितना भी मेंटल से रिलेटेड डिजीज है, इसमें जो 3 पॉइंट बोला कि पेशेंट का अपना फीलिंग जो एक्सप्लेन करेगा, और अटेंडेंट अटेंडेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अटेंडेंट ही उसको सब सारी बातें बताएगा। और समटाइम्स इट हैपेंस कि जो मेंटल डिजीज वाला रहता है उसके तो अटेंडेंट आके पहले से फिजिशियंस को एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो आकर के बताएगा नहीं, और उसको चूंकि वो दवा भी नहीं खाएगा, ही इज वेरी मच सस्पिशियस कि वो दवा भी देगा तो कहेगा आप जरूर कुछ उसमें मिला के दे रहे हो, दवा भी नहीं खाना चाहता। तो आप उसका देख लीजिए, और उसको XYZ कह के लाते हैं कि चलिए आपका पैर दर्द दिखा देते हैं, चलिए आपका पेट में गैस हो गया उसको दिखाते हैं, और अटेंडेंट पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं फिजिशियंस को। देन हियर the knowledge of physician and quality of the physicians and acumen of the physicians works there. Now whenever he asks related to the question either of abdomen pain or leg pain, then physicians have ever penetrating eyes as well as उसको अंदर से इतना सेंस होना चाहिए कि हाउ द क्वेश्चन इज टू बी इंस्टीट्यूटेड, सो दैट कि पेशेंट जो है कुछ बातें बता दे। वो फिजिशियंस के एक्सपीरियंस और क्वालिटी पे निर्भर करता है। लेकिन फिजिशियन चाहे तो ऑब्जर्व भी कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है ना सिजोफ्रेनिक पेशेंट कैसा होता है, उसको नॉलेज है ना कि डिप्रेशन का पेशेंट कैसा होता है, तो वो अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व कर रहा है। और अटेंडेंट ने बता दिया है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो वो अकॉर्डिंगली पूछेगा और उसको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और तब कुछ जरूरत पड़ेगी तो फिर से अटेंडेंट को बुला करके फिर उसकी टोटलिटी बनाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर उसको ट्रीटमेंट देगा। आशीष, एनी मोर क्वेश्चंस related to aphorism number 6 as well as right from aphorism number 1 to 6, 1 से लेके 6 तक, या 6 aphorism में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है आप लोग बहुत पढ़े लिखते हो, आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब अभी जगह नहीं है मेहताब जी, याद है सोए हुए। और कोई क्वेश्चन? if you have no question related to aphorism number 1 to 6, then as I'm saying that time is also going to be over. So because अभी अगर 7th aphorism डील करेंगे तो ये आधा अधूरा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम 7 और 8 एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हमने सोचा था कि आज 6, 7, 8 तीनों को लेकर चलेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि सभी तीनों हो पाए। इसलिए अभी हम इस मीटिंग को, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पर हम एंड करते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।